Today, the Supreme Court adjourned the hearing of the multiple petitions that are seeking cancellation of the NEET undergraduate 2024 exam until next Thursday. The court granted the adjournment to enable the petitioners to file their responses to the affidavits that have been filed by the Centre as well as the National Testing Agency. The Supreme Court is currently addressing several petitions concerning the NEET exam, which include allegations of irregularities and malpractices during the 5th May exam that was held, with demands now being made for a fresh test. The controversy surrounding this exam stems from allegations of paper leaks, OMR sheet tampering, impersonation and cheating. The petitioners claim these irregularities compromised the integrity of the test and potentially disadvantaged a large number of deserving students. The central government, on the other hand, maintains there is no concrete evidence of large-scale malpractices. In their affidavit to the court, the National Testing Agency has asserted the distribution of marks across the exam reflects a normal pattern, suggesting that there was no external influence. The agency has also detailed its security protocols for question paper printing, transportation and distribution, saying that all of these measures ensure confidentiality. जी, क्योंकि आज लंच के बाद में जो बेंच थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो कोर्ट ने इसको कल के लिए प्रपोज करा। फाइनली सॉलिसिटर जनरल मंडे और ट्यूसडे अवेलेबल नहीं थे, तो मैटर वेडनेसडे को वेकेशन होने की वजह से अब थर्सडे को सुना जाएगा। अब ये तो सेंटर शुरू से ही डिफरेंट व्यू ले रहा है। कभी वो मान रहे हैं कि लिमिटेड लीक हुआ है, लेकिन आज उनका जो एफिडेविट फाइल हुआ है, उस एफिडेविट में उन्होंने इवन पटना के लीक को भी डिनाई कर दिया है। तो पटना में भी उनके हिसाब से पटना, सवाई माधोपुर कहीं भी कोई किसी किस्म का कोई लीक नहीं। ये रिगिंग केवल सीमित क्षेत्र में या कुछ चंद लोगों तक के लिए, ये पूरे बड़े पैमाने पे नहीं कि पूरी नीट परीक्षा उससे प्रभावित नहीं है। और जो लोग प्रभावित हैं उनके विरुद्ध उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। और इसी बात को लेकर के सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई है और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, इसमें जो भी सर्वोच्च न्यायालय का मंतव्य होगा, जो निर्णय होगा, उसे सरकार मानेगी। लेकिन जहां तक सरकार का पक्ष है, सरकार ने उस सारी चीजों को, तथ्यों को रखा है और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। और जितने बड़े पैमाने पर छापे पड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन उसके बाद भी जो सर्वोच्च न्यायालय का इसमें निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। The centre was answering the questions specifically raised by the Honorable Chief Justice on the last hearing. The judge had specifically asked the centre to give an affidavit and explain on certain data points to prove that the sanctity of either the entire exam was compromised or it was certain pockets, certain beneficiaries which are very few in number, which can therefore be segregated from the entire group so as to not have to cancel the entire exam. The learned SG appeared and the centre has filed an affidavit and they're claiming based on all the questions that were raised have been answered in the counter affidavit, and they're saying that it was not the entire exam sanctity that's been compromised. They're saying there is no need for a re-NEET. They're saying the paper leak has not happened everywhere. Even if it has happened in certain pockets, that is subject to a separate investigation by the CBI, and that should not affect this paper. Those mischief makers, the beneficiaries, can be segregated. That's broadly what he's saying right now. देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए। हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जेई मेंस हो, फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, फिर चाहे वो सीयूईटी हो, फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे एग्जाम में जो रैंक इन्फ्लेशन है वो जस्टिफाइड है और फिर जो सिर्फ नीट यूजी के अंदर ही 400% से रैंक इन्फ्लेट होता है। उसके बाद फिर सेल्फ डिनायल है कि इसमें बहुत बड़ा चीज़ है कि एनटीए पहली बात तो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मोरली सपोर्टिव नेचर उनका है, या फिर कह सकते हैं कि उनका ट्रेड बिल्कुल नहीं है। बच्चे यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोसेस डेफिनेटली नहीं है कि पहले हम अपना 12th करें, फिर एक ड्रॉप करें, तैयारी करें, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाएं। ये हमारा काम नहीं है। जिस प्रकार से नीट में धांधली हुई, स्कैम हुआ, अब नहीं लग रहा है कि हम लोग को होगा। पर इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद सरकार को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त करके दोबारा एग्जाम लेने की आवश्यकता है, ले लेना चाहिए।
तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बड़े लेवल पे स्कोर इन्फ्लेशन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अलग अलग सबूत है कि 30-30 लाख में जो है पेपर बिका है और एक दिन पहले बिका है। तो हम समझते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर टेलीग्राम के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से कई मुकामात पे सर्कुलेट होता है। जो भी स्टूडेंट्स गरीब है, जो स्टूडेंट्स मेहनत किए हैं पिछले 2 साल से 1 साल से, उनके लिए ये इंसाफ नहीं है कि एक पेपर को, एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए, पेपर उनको पहले ही मिल जाए और एक स्टूडेंट जो है बिल्कुल फ्रेश अपनी मेहनत की तैयारी के साथ जाकर पेपर अटेम्प्ट करे। तो ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है।